Hi friends, welcome back again. Welcome to Bible of Derivatives. Educate yourself to fulfill your dreams because earning is learning. Hope you all are keeping well and trading well, of course. Today we are going to discuss about a very interesting topic. Hope you will gain a lot of knowledge from this video. We will discuss about the various orders that we can place while buying or selling a stock or a future option derivatives in the derivative section, and we will also talk about stop loss. What is stop loss, how to place a stop loss, and how to trail it to gain maximum profits. So friends, sit back and enjoy and try to gain the knowledge from the video and implement it in real life trading or investing. So let's first understand the market timings of the Indian stock market, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, लेकिन let's recap for the beginners. Indian stock market के लिए there are 4 windows of time. First is the pre-market session, which is from 9 a.m. in the morning to 9:15 a.m. in the morning, for which stock exchange accepts order for price discovery. मतलब कि ओपनिंग प्राइस का या इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ स्टॉक is decided in the pre-market session. The second window is the regular market hours from 9:15 a.m. in the morning to 3:30 p.m. in the afternoon, where normal or regular buy and sell orders are placed, which can be in the cash market or in the derivative section, मतलब futures and options में. The third window is the post-market session, which is from 3:40 p.m. in the afternoon to 4 p.m. for about 20 minutes. But there are some limitations in trading within the post-market session window. We discussed it earlier. हमने इसके बारे में भी पहले चर्चा किया है. And the fourth window is the after-market session, which starts from 4 p.m. in the afternoon after the closing of the post-market session till 9 a.m. in the morning in the next trading session, before the pre-market session of the next trading day begins. We all are aware of the 3 sessions, that is the pre-market, the regular hours and the post-market sessions, but the after-market session is a new thing for a lot of viewers. So आफ्टर मार्केट सेशन में क्या होता है, कौन सी ऑर्डर प्लेस किया जाता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं. आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स और AMO आर ऑर्डर्स व्हिच आर प्लेस्ड आफ्टर द मार्केट इज क्लोज्ड. ये ऑर्डर मार्केट क्लोज होने के बाद, मतलब पोस्ट मार्केट सेशन जब खत्म होता है उसके बाद, मतलब 4 PM 4 बजे से शुरू होता है. It is important to note that in this window orders are just placed, but they are not executed. इस विंडो में मतलब कि आफ्टर मार्केट सेशन में ऑर्डर्स जो कि बाई या सेल ऑर्डर्स हो सकता है, वो सिर्फ डाला जाता है. We can place the orders, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होता है. ये ओनली एग्जीक्यूट होता है नेक्स्ट दिन के मार्केट आवर्स में. The number of traders using AMO या आफ्टर मार्केट ऑर्डर has gone up significantly in the recent years. Why? क्यों? कारण ये है कि हम लोगों की जिंदगी are getting busier day by day. AMO is designed for busy people. जो ट्रेडर्स रेगुलर मार्केट आवर्स के बिजी रहते हैं, इनकी कई कारण हो सकता है, मे बी ड्यू टू जॉब इश्यूज और अदर बिजनेसेस, या कोई जिसके पास बहुत बिजी वर्क शेड्यूल है और वो दिन भर मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, या कोई वेकेशन में है और मार्केट आवर्स में टाइम नहीं मिलता है. इन एनी ऑफ दिस अबव केसेस AMO और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स कैन बी रियली हेल्पफुल. Most of the smart or professional traders
research about the trade in the evening or night time and place their orders in advance. याद रखिए, ये सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये तब एग्जीक्यूट नहीं होता है. It can only get executed in the next day market hours. अब ये मार्केट आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के लिए हर एक ब्रोकर की डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स या लिमिटेशंस कह लो होता है, टाइमिंग्स भी डिफरेंट होता है, एंड दे कीप चेंजिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. हर एक ब्रोकर के बारे में डिस्कस करना मुमकिन नहीं है. लेट्स स्पीक अबाउट ज़ेरोधा, इंडियाज नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, जिसमें मेरा भी अकाउंट है. सो हाउ डज आफ्टर मार्केट आवर्स वर्क? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. आफ्टर मार्केट आवर्स, जो कि शाम की 4 बजे से शुरू होता है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द पोस्ट मार्केट सेशन, इसमें आप ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं इसके बारे में हम जान लें. सोचिए कि आपने मिडनाइट में एक ऑर्डर, बाई ऑर्डर डाला है. इट विल पास टू द ज़ेरोधा सर्वर एंड विल रिमेन देयर टिल 8:59 AM in the morning before the next day trading session begins. Along with other thousands of other orders, after validating the orders for margins and other parameters, ज़ेरोधा ये सारे orders को फायर करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को exactly at 9 o'clock when the pre-market session begins. When the pre-market opens, इनमें कुछ orders जो कि एक्सचेंज द्वारा मैच किया जाएगा will be print during the pre-market itself, that is around 9:07 to 9:08 AM. और बाकी orders को रेगुलर ऑर्डर्स की तरह माना जाएगा at 9:15 AM जब एक्चुअल मार्केट शुरू होता है. अब टाइम स्लॉट के बारे में चर्चा करते हैं कि आप AMO प्लेस कब कर सकते हैं. ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है. ये डिपेंड करता है कि आपकी ब्रोकर की सर्वर कब मेंटेनेंस के लिए डाउन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इन ज़ेरोधा अलाउस करते हैं AMO और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए इन द फॉलोइंग टाइम स्लॉट्स. इक्विटी और कैश मार्केट के लिए फ्रॉम 4 PM टू द प्रीवियस डे टू 8:49 AM बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्री मार्केट सेशन ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे. करेंसी के लिए भी यही टाइमिंग है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव सेक्शन के लिए ये टाइमिंग है 4 PM in the afternoon to 9:10 AM in the next day morning session. आपको थोड़ा सा एडिशनल टाइम मिलता है इसमें, और कमोडिटीज के लिए आप AMO ऑर्डर्स कभी भी डाल सकते हैं, मतलब कि एनी टाइम ड्यूरिंग द आफ्टर मार्केट विंडो. अब स्टॉक्स का टाइम स्लॉट है क्या और कोटक का टाइम स्लॉट है क्या, ये सब आप अपने ब्रोकर्स को से साथ चेक कर लीजिए. आप अपने ब्रोकर को कॉल कर सकते हैं या उनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट टाइम स्लॉट्स व्हिच कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स अलाउ देयर क्लाइंट्स टू प्लेस AMO और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ऑनलाइन और बाय कॉलिंग देयर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स. इसमें कुछ ब्रोकर में कॉल एंड ट्रेड के लिए कुछ एडिशनल चार्ज भी कर सकते हैं. अब हम ये जान गए हैं कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आर प्लेस्ड व्हेन द मार्केट्स आर क्लोज्ड और इनके टाइमिंग्स भी हमने जाना है. अब चर्चा करते हैं कि AMO या आफ्टर और मार्केट ऑर्डर्स में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है. लेट्स स्टिक विद ज़ेरोधा. ज़ेरोधा अलाउज AMO इन ऑल सेगमेंट्स. ज़ेरोधा अपने सारे सेगमेंट्स में आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स अलाउ करते हैं, यानी कि कैश मार्केट दैट इज इन इक्विटीज, इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दैट इज इन डेरिवेटिव्स, इन करेंसीज एंड MCX commodities. So basically you can place AMO और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स इन एनी ऑफ दिस सेगमेंट्स. अब आते हैं प्रोडक्ट टाइप्स या सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि CNC ऑर्डर्स जो कि डिलीवरी बेस्ड होता है, MIS ऑर्डर्स जो कि इंट्राडे बेस्ड होता है, एंड नॉर्मल ऑर्डर्स दैट इज फॉर टेकिंग डिलीवरी इन फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस. CNC ऑर्डर्स, MIS ऑर्डर्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. अब जो कि अलाउड नहीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे. ब्रैकेट ऑर्डर्स,
cover orders and stop loss orders are not allowed in any type of AMO orders. हम ब्रैकेट ऑर्डर्स या कवर्ड ऑर्डर्स नहीं डाल सकते. I am sure some of you will be disappointed to know that. Now let's talk about the price. In Zerodha में आप both मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं. However, कुछ ब्रोकर्स का रूल डिफरेंट होता है. कुछ ब्रोकर्स मार्केट प्राइस ऑर्डर अलाउ नहीं करते हैं. ये आपके ब्रोकर के साथ चेक करना पड़ेगा. और लिमिट ऑर्डर में भी the limit price should be within a certain range or a certain percentage range of the day's closing price of the stock. ब्रोकर ये बोल सकता है कि कोई स्टॉक जो कि क्लोज हुआ है at ₹100, you can place only limit orders at a limit of maximum 5% up or down. In case of buy at 95 minimum and sell at 105 maximum, जो भी ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है. देखिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में यू आर जस्ट प्लेसिंग द ऑर्डर्स. द ऑर्डर्स विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड देन. द ऑर्डर्स विल ओनली गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द मार्केट ओपन्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर्स, कवर्ड ऑर्डर्स अलाउड नहीं होता है, वैसे ही इन द आफ्टर मार्केट ऑर्डर सेशन stop loss orders are also not accepted. कभी AMO में भी rejected due to margin issues. We will talk about in details about this in some other videos. Lastly, मैं कुछ advice देने वाला हूँ कि how to use AMO or after market orders. Never place a market price order if the volatility in the first few minutes of the trade in the next day morning is very high. मार्केट शुरू होने के पहले कुछ मिनट वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है, and if you place a market order, you may end up probably at the worst price for your trade. If there are higher slippages, it's always better. कि सबसे अच्छा होता है कि you place a limit order. My second advice is that कि आप AMO intraday orders के लिए मत डालिए, because after market orders or AMO are not designed for intraday traders. It is designed for those traders who are busy during the market hours due to their work schedule, जिनको मार्केट वॉच करने का टाइम नहीं है during the day time. अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, you get enough time from 9:15 AM to 3:30 PM in the afternoon. आपको 6.5 घंटा पड़ता है, 6.5 घंटा मिलता है इंट्राडे ट्रेड के लिए, लेने के लिए और उससे निकलने के लिए. But if you are placing a AMO for intraday, that is a MIS order, that means you are careless with your trade, and I strongly advise you not to do that. The last piece of advice is never chase a news flow. क्या होता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद किसी स्टॉक में एक बड़ा न्यूज आता है कि जैसे कोई मर्जर प्लान हो गया, कोई नई ऑर्डर रिसीव किया है किसी स्टॉक ने, कंपनी ने, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेंज हुआ, और एनीथिंग जो कि ट्रिगर करते हैं कि बड़ा प्राइस मूवमेंट इन द नेक्स्ट डे. ऐसा होता है कि पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट द न्यूज एंड दे वांट टू बाय फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इफ द न्यूज इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव. और उसी एक्साइटमेंट में ये AMO या आफ्टर ऑर्डर मार्केट डालते हैं. This can be very risky because it has a tendency to gap up a lot, sometimes even 8 to 10% if the news is positive, and gap down a lot if the news is negative. और ये टॉप से बहुत गिर सकता है. It can fall down drastically due to heavy profit booking as soon as the market opens. So always remember, after market orders are designed mainly for investors, not for traders. I hope you got the concept of after market orders. So we have known about the after market orders or AMO. Now we'll know what orders can be placed during the regular market orders from 9:15 AM to 3:30 PM in the afternoon. इन सब orders क्या मतलब होता है और क्यों एक ऑर्डर एक दूसरे से अलग होता है, और आपको कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों के साथ
थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ऑर्डर्स आर ब्रॉडली ऑफ वेरियस टाइप्स, जैसे कि सिंपल ऑर्डर्स, कवर्ड ऑर्डर्स, OCO that is one cancel others, which is also known as bracket order, market order या लिमिट ऑर्डर जो कि सिंपल ऑर्डर्स के अंदर आता है, और AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जिसके बारे में हमने वीडियो के पहले में ही चर्चा किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल ऑर्डर्स। सिंपल ऑर्डर्स से शुरुआत करते हैं, जिनमें दो टाइप का ऑर्डर होता है, एक है मार्केट ऑर्डर और एक है लिमिट ऑर्डर। द मोमेंट आई से मार्केट ऑर्डर, जिसमें हम बाई प्राइस या सेल प्राइस डाल नहीं सकते, इट्स गेट फ्रोजन आउट, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आई डोंट वांट टू बार्गेन, मुझे प्राइस पे बार्गेन नहीं करना है। जो भी मार्केट है उसी प्राइस पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। यू कैन गिव ओनली द ट्रिगर प्राइस वंस द ट्रिगर प्राइस इज अचीव्ड। जब भी ये ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है, द ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर अकॉर्डिंग टू द स्टॉक प्राइस, जो कि आपके ट्रिगर प्राइस के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर स्लिपेजेस ऊपर की तरफ है तो यू विल गेट योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट अ हायर प्राइस, और अगर स्लिपेजेस नीचे की तरफ है यू विल गेट योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट अ लोअर प्राइस। फॉर बायर्स, lower slippages is good because you will get to buy cheaper than the trigger price, and for sellers, अगर slippages ऊपर की तरफ है तो you are beneficiary because you will get to sell at a higher price which is desired and expected by you, that you sell higher and buy lower. Market orders का मतलब ये होता है कि सोचिए कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है 105 रुपए और आप वो मार्केट ऑर्डर डाल रहे हैं टू बाई एट द प्राइस विच इज द मार्केट शोइंग, दैट इज 105 रुपए में आप खरीदने के लिए तैयार हो। ये प्राइस चेंज भी हो सकता है, 105 से जाके 102 भी हो सकता है ड्यू टू लो स्लिपेजेस, और बढ़ के 108 भी हो सकता है ड्यू टू हाई स्लिपेजेस। तो अगर आप 105 पे मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो हो सकता है कि आपका ऑर्डर 107 में जाके एग्जीक्यूट हो जाए, और वो ये भी हो सकता है कि वो नीचे जाके 102 में भी मिल जाए। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का चांस बहुत जल्दी हो जाता है, बट द डिसएडवांटेज इज दैट जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है ये उसकी ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मान लीजिए आप 10 स्टॉक का प्राइस प्लेस कर रहे हैं 200 रुपए में, और आपने और मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है और शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होकर 208 रुपए पे चला गया ड्यू टू हायर स्लिपेजेस, तो मार्केट ऑर्डर में आपका ऑर्डर 208 रुपए में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना कि 200 रुपए में, और आपको आपका डिजायर्ड प्राइस नहीं मिला, लेकिन आपको स्टॉक में घुसने का मौका जरूर मिलेगा क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट होने ही वाला है। पर इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपका ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा और चांसेस है कि ये बहुत जल्दी हो जाए। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अ स्टॉक इज एट ₹100 एंड यू प्लेस अ मार्केट ऑर्डर जहां पे सिर्फ ट्रिगर प्राइस डाला जा सकता है, और आपने ट्रिगर प्राइस डाला है ₹101 पे। अब when it reaches ₹101, your market order will get triggered. But suppose sellers खड़े हैं 105 रुपए में, so it can get executed at ₹105, जो कि way above your expected price है। तो this is the disadvantage of market order कि orders आपका तो execute होगा ही, क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर डाला है, लेकिन ये नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एंड यू मे नॉट गेट योर डिजायर्ड बाइंग और सेलिंग प्राइस। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट ऑर्डर का। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी एक प्राइस पे आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई शेयर का प्राइस का चल रहा है, सोच लीजिए ₹500, तो आप उसको खरीदने की ऑर्डर डाल सकते हैं
480 रुपए पे, और आपकी ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो प्राइस 480 तक जाएगा। अगर वो प्राइस उतने नीचे नहीं आता है तो आपकी ऑर्डर मार्केट में जाएगी ही नहीं। ये उसकी डिसएडवांटेज है, और ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि आपकी डिजायर्ड प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो डिजायर्ड प्राइस ये नहीं आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। हो सकता है कि आपको प्राइस 500 से 582 तक आ जाए या 580.50 तक भी आ जाए, लेकिन आपने अगर 480 पे बाई लिमिट ऑर्डर डाला है तो अगर वो 480 तक नहीं आता है तो ऑर्डर वुड नॉट गेट एग्जीक्यूटेड इन द मार्केट। तो ये जनरली मार्केट में ट्रेडर्स यूज करते हैं, जिसको पता है कि मार्केट में स्टॉक को उनको किस प्राइस में बाई करना है और किस प्राइस में सेल करना है। अभी हमने आपको बताया मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बारे में। इसमें एक ऑर्डर और आता है जिसको बोलता है स्टॉप ऑर्डर। बहुत लोग इसे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी बोलता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब का आपका स्टॉप, आपका लॉस को स्टॉप करना आप चाहते हैं। दिस कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड गेट आउट विद मिनिमम लॉस इफ यू स्टॉक सडनली गोज द रॉन्ग वे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बाई ऑर्डर डाला है ₹100 पे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा और आप उसे महंगा बेच सकोगे और प्रॉफिट कमा सकोगे। पर कभी कभी आपके एनालिसिस और एक्सपेक्टेशन की अगेंस्ट भी मार्केट जा सकता है कि स्टॉक ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाए, तो आपका जो लॉस है इसे मिनिमाइज या प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर आपने डाला है 94 पे, इसका मतलब हुआ आप 6 रुपए पर स्टॉक लॉस उठाने के लिए तैयार थे। तो अगर मार्केट 100 रुपए में आप बाय करने के बाद थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए और 94 पे आपने स्टॉप लॉस डाला है, तो जब ये स्टॉक 94 में आता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, और आपको 6 रुपए से ज्यादा लॉस इन केस में नहीं हो सकता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर भी दो तरह का होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। Hope you enjoyed the part 1 of the 2-part series. आशा करते हैं कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग था और इंफॉर्मेटिव था और आपको काफी सारा नॉलेज मिला होगा। Do not forget to subscribe, like, share and comment on the video. Please do press the bell icon so that आपको instant notification मिल जाए जब हम कोई भी नया वीडियो रिलीज करें। We will be coming back soon with the part 2 of the series. हम जल्दी ही ये 2 पार्ट सीरीज की जो पार्ट 2 है उसको लेके आने वाले हैं। Thank you for watching. Thanks a ton for watching and learning. As in Bible of Derivatives, we believe that learning is earning. Happy trading, guys. Stay healthy and happy. Take care and stay safe. See you soon in the part 2 of the 2-part series.